My money is in part US market, part India market, part startups. That's तो those are the US three. मार्केट में like- डाल रखा है तो फिर if it's overvalued then because I'm sure US मार्केट में स्मॉल कैप थोड़ी उठाया होगा. नहीं मैंने like I invest in technology startups only. The big ones. And the big ones. So my regular investments just keep happening. I invest in mutual funds only. I don't buy direct stocks in India. I invest in ETFs in the US. I don't buy direct stocks there, except for one. I'm bullish on that. Which one? Tesla. So that's the only one that I've Even taken today up. you're bullish. Oh yeah, absolutely, 100%. Tesla is going to be a $10 trillion company. Absolutely. Why? Because between अब तो SpaceX के साथ भी सब हो जाएगा, but between EVs, robots, and space, they will just create unprecedented wealth driven by the fact that they'll make virtually everything commoditized and go to zero. So the same thing that Elon says, कि nobody will have to plan for retirement because there'll be enough and more money. I'm in the same school. I think that there is going to be a time not too far away in the future, let's say, I don't know, 2 or 3 decades, perhaps even sooner, where people will not have to work. There will be enough and more money distributed to everybody to do whatever they want to do, pursue whatever interest they want. They will be watching, figuring out end infinitum. They will be creating their own content. They'll be gardening. They'll be pursuing this. Nobody has to go to work. Nobody has to travel. We need to sit down on this thought. आप बोल रहे हो कि सब लोग ऐसा पैसा होगा, सब कमाएंगे. What was that thought? Universal basic income, you feel? So universal basic income is an attribute to that because it becomes the easiest way to understand this. I don't know what the mechanism will be क्योंकि UBI implement करने के लिए political will बहुत strong चाहिए, बहुत ज़्यादा, जो शायद एक democracy में इतनी आसानी से नहीं होगा. But I don't know what the manifestation of UBI will be. But what will essentially happen is कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ companies हैं जो extraordinary level पे services provide करेंगी at costs that are unheard of. Near zero. And they will be sitting on the biggest corpuses that can be generated, which is why I say, and this is my sense, कि a company like Tesla could easily be a $10 trillion company, perhaps even more, क्योंकि वो genuinely value create कर रही है. अब वो taxes के through, subsidies के through, grants के through, CSR के through, whatever it is, they will generate an income into the system. But they will not need as many people as we need today. So imagine the way that it happens right now, and this is a very crude example, and I could be very far away from how it happens, कि एक कंपनी बोलती है यार हमें इस जगह पे एक मैन्युफैक्चरिंग सिटी खोलनी है. हमें पता है कि इसकी वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन होगा, इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन होगा, सोशल डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है वगैरह, लेकिन हम उसकी भरपाई करने के लिए तैयार हैं. तो हम इस पूरे मैन्युफैक्चरिंग सिटी को बहुत अच्छे से डेवलप करेंगे, स्कूल्स खोलेंगे, हॉस्पिटल्स खोलेंगे, ओल्ड एज होम्स खोलेंगे, क्रैश खोलेंगे, जॉब्स इनक्रेडिबल होंगी, अच्छी पे पैकेजेस देंगे, ऐसा इंफ्रा बनाएंगे कि पीपल विल फील कि यार ठीक है डेवलपमेंट हुई है. हाँ थोड़ा इधर उधर कुछ हो गया है, बट लॉन्ग टर्म आई थिंक इट्स अ नेट पॉजिटिव. एंड नाउ एक्सट्रैपोलेट दैट टू हाउ द वर्ल्ड विल बी. कि कुछ कंपनीज बोलेंगे यार हम जानते हैं कि थोड़ा सा इसमें से कुछ फटेगा, कुछ टूटेगा, कुछ उखड़ेगा, लेकिन हम लोगों का अच्छे से ख्याल रख लेंगे, हम उनको अच्छे से सर्विसेज देंगे, वो जो करना चाहते हैं करेंगे वगैरह, बस हमें अलाउ करो ये करना. जॉब्स तो सबके पास होंगी, लेकिन वो ना मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है ऑप्शनल होंगी. जैसे पैसे कैसे बनेंगे लोगों के? यार पैसे ना खुद नहीं बनाएंगे. ओके सो पैसे बनाने का कॉन्सेप्ट इज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट. इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, जैसे हम इन सिविलाइजेशन हिस्ट्री, हाँ मतलब इन सिविलाइजेशन हिस्ट्री, अगर आपने वो किताब सेपियंस पढ़ी है या आपने इसको ट्रैक किया है, तो ये बहुत सारी चीजें जो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं बहुत नई नहीं है. जैसे मैं कल ही पढ़ रहा था कि ब्रेकफास्ट का कॉन्सेप्ट कितना नया है, क्योंकि ब्रेकफास्ट इज नॉट अ मैंडेटरी मील. जैसे आज हमें बोला जाता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, डोंट एवर स्किप ब्रेकफास्ट वगैरह वगैरह. इट्स ऑल मार्केटिंग गिमिक्स टू प्रमोट अ सर्टेन ब्रांड, चाहे वो कॉर्नफ्लेक्स हो, चाहे वो कुछ भी पैनकेक्स वगैरह ये सब हो. लेकिन इंसान पहले, लेट्स से 400-500 साल पहले, तब खाता था जब उसे भूख लगती थी. अब वो एक बड़ा इंसान 3 बार खा सकता है, एक छोटा इंसान 1 ही बार खाएगा, कुछ लोग शायद 2 दिन में 1 बार खा लेंगे, लेकिन तभी खाएंगे जब भूख लगेगी. एंड खाना मिल जाता था, या तो पेड़ से तोड़ लिया, खुद बना लिया वगैरह. Now the same way, बहुत साल पहले लोग काम पे नहीं जाते थे. Like there was no work, there was no office, there was no concept of showing up at some place.
बट इट वॉज डन बिकॉज ऑफकोर्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, लोगों की ज़रूरत पड़ी, अब लोगों की ज़रूरत पड़ी एंड लोग लेट्स से नहीं काम करना चाहते, तो फिर एक कॉन्सेप्ट बना कि चलो इनको हम पढ़ाते हैं, क्योंकि पढ़ाने से इनको समाज में इज्जत मिलेगी। लेकिन वो पढ़ाना हमारे लिए काम करना चाहिए, तो हम बहुत सारे बच्चों को ना एक क्लास में डालेंगे, उनको बोलेंगे कि शुरुआत तुम सेम दिन पे करोगे, एंड तुम सेम दिन पे करोगे, सारे बच्चे सेम चीज़ पढ़ेंगे, चाहे तुम स्मार्ट हो चाहे तुम गधे हो, और साल के अंत में एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट में जो सबसे स्मार्ट लोग होंगे ना, उनको सबसे बेस्ट नौकरियां मिलेंगी। उनको हम फैक्ट्रियों में बोलेंगे कि तुम टायर बनाओगे, तुम स्टीयरिंग व्हील बनाओगे, तुम स्टीम का ख्याल रखोगे, और वो टायर के एक्सपर्ट बन जाएंगे, वीपी ऑफ टायर्स, वीपी ऑफ स्टीयरिंग व्हील, वीपी ऑफ स्टीम, वीपी ऑफ कलर पेंट, व्हाटएवर, एंड दैट विल बी देयर ड्रग। तो उनको हम पैसे देंगे, वो पैसा फिर वो और खर्च करेंगे, फिर जो पैसा उनके पास बाद में आने वाला है वो हम उनको आज ही दे देंगे, जिसको हम लोन बोलेंगे। उस लोन पे हम एक ब्याज डालेंगे, उस ब्याज से वो और फंस जाएंगे, क्योंकि अब अगर नौकरी छूट गई तो जो पैसे बाद में सालों तक देने हैं वो कहाँ से देंगे, तो वो उसमें फंस जाएंगे। लाइक सो इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, आई एम नॉट बीइंग निहिलिस्टिक अबाउट इट और पेसिमिस्टिक, if you really go into the history of how civilization has functioned and changed, you will see that there has been a very strong reason कि चीजें क्यों हुई हैं, कैसे हुई हैं। गेम बनाया एक। तो I don't know if you ever asked, because I hope you don't at the age of 28 ask this, कि लोग काम पे क्यों जाते हैं, लाइक क्यों है यहाँ 75 लोग, इनको ही तनख्वाह मिल रही है, तुम अपने जुनून से ये कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मुलाजिम हैं, वो फंसे हुए हैं, लाइक दे डोंट वांट टू डू दिस, दे वुड मच रादर स्पेंड टाइम विद देयर किड्स, विद देयर फैमिली, विद देयर एलिंग मॉम और पेरेंट्स बैक इन देयर विलेजेस, व्हाट नॉट, बट दे आर डूइंग इट क्योंकि पैसा 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 पैसा। अब यही पैसा अगर उन्हें मिल जाए, जहां उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, उनको शिक्षा मिले, देन द ओनली थिंग दैट आई पर्सनली फील एवरी ह्यूमन विल ऑलवेज वांट इज पर्पस, एक कारण जिसकी वजह से मैं रोज सुबह उठूं, वो कारण बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो कारण काम नहीं हो सकता, या सबके लिए तो काम नहीं हो सकता, लेकिन आज है। आज द बिगेस्ट रीजन व्हाई पीपल गेट अप व्हेनेवर दे गेट अप इज देयर वर्क। इट इज नॉट कि मुझे जिम जाना है, इट इज नॉट कि मुझे अपने बच्चों के साथ वक्त बिताना है, इट इज नॉट कि आज मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा, इट इज नॉट कि मैं कुछ नया बनाऊंगा, इट इज नॉट कि आज मैं वाइब कोड करके एक ऐप लॉन्च करूंगा, इट इज मुझे काम पे जाना है, क्योंकि काम पे नहीं गया तो काम से निकाल दिया जाऊंगा तो ईएमआई नहीं भर पाऊंगा, ईएमआई नहीं भर पाऊंगा तो सिविल स्कोर कट जाएगा, जिंदगी में कभी लोन नहीं मिलेगा, जिंदगी बर्बाद, फिर क्या करेंगे। एंड आई पर्सनली फील दैट शुडंट बी हाउ ह्यूमंस शुड लिव और शुड हैव एवर लिव्ड। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक 200-300 साल का एक चर्न आया था, अब धीरे धीरे हम वापस उस एरा में जा रहे हैं जहां होपफुली जितना भी गंद हमने 200-300 साल दुनिया में मचाया वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, एंड लोग वापस जाएंगे कि सुबह उठेंगे एंड राज गार्डनिंग कर रहे हैं, अंकुर टेनिस खेल रहा है, आप पॉडकास्ट करेंगे, आप डाल देंगे, लेकिन आपको उससे पैसे कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ नियर जीरो पे है, या अगर आप वाकई में कुछ ऐसा कर रहे हैं विच इज़ सो गुड दैट द वर्ल्ड वांट्स, आप ऑटोमेटिकली उससे पैसे कमा लेंगे, लेकिन आपको ज़बरदस्ती कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे हम लोग? आगे, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। आगे हम तब बढ़ते हैं जब कुछ जुनून वाले लोग काम करते हैं, जो कि हमेशा रहेंगे राज, हमेशा रहेंगे, उनको वैसे भी मतलब नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक अगर दुनिया का सबसे अमीर इंसान कुत्तों जैसे ऑफिस में काम कर सकता है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन सिर्फ यही है कि कुछ लोग हमेशा इस दुनिया को आगे बढ़ाएंगे, एंड हमें उन लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो खुद बनते हैं, जिस भी कारण से बने, चाहे वो चाइल्डहुड ट्रॉमा हो या एक सेंस ऑफ पर्पस हो, बट उनको ड्राइव करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, उनको ड्राइव करने के लिए कोई कारण भी नहीं चाहिए। वो वैसे लोग हैं जो बिना कारण के सुबह उठते हैं, अपना वक्त बिताते हैं, एंड अपनी दुनिया ऐसे ढंग से जीते हैं दैट कैन नेवर बी एक्सप्लेन्ड बाय कॉमन लॉजिक और कॉमन सेंस। आई फील सो, I really feel so, and that will generally drive. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इंसान की फितरत प्रॉब्लम सॉल्व करना होती है, एंड अगर हमें वक्त मिले, अगर हमारे पास वो क्षमता हो, एंड हमारे ऊपर कोई प्रेशर ना हो, तो हर एक इंसान अपनी एक मीनिंगफुल प्रॉब्लम उठा के उसको सॉल्व करेगा। That's it. The world's progressing.
It's going to progress. We will go to Mars. We will travel space. We will solve all diseases. We will fix everything that needs to be fixed. But it doesn't need to come in the form of forced labor. Interesting. This is कितने लोग ये सुन के गाली देंगे they will be like No, ये क्या फालतू बातें कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, but ये क्या हो रहा है. I don't know if I agree with this or no, but there is some truth and logic to this. नहीं, For real, like there is some logic to it and there is some truth to it. I don't know, maybe I'm not that person who's able to understand this at this point, but I get the logic. I get what you're trying to say and it makes sense. So let's say, man, we'll see. you've opened a door for We'll me. see. I'm not convinced yet. But That's fine. My job is certainly not to convince you. I mean, I'm just relaying what I think of, and I actively think of this. ये मेरी जैसे अभी 3 टाइप के कमेंट्स होते हैं ना, तो एक टाइप के ऑडियंस होंगे कि ही इज राइट, हाँ. अंकुर जो बोल रहा है इज विजनरी, इज एबल टू सी इट, थिंक इट. एक टाइप के होंगे तो एकदम बकवास क्या है ये, बकवास प्रिविलेज बातें राइट, नहीं फूक के आना था. yeah, so that will be the second audience, and then third will be like my type people are like यार पता नहीं, हो भी सकता है, समझ नहीं आ रहा, maybe not. So we are on that zone. Wow. Okay, this on this thought, क्योंकि भी I don't know why ये conversation मेरे पास I think in last 20 days ये 4th या 5th टाइम हो रही है. Wow. About universal basic income, दुनिया कहाँ जाएगी, कैसे होगी, and I don't know why, मैं बात सोचता भी नहीं इन सब के बारे में, and it just comes out. And somebody after this whole conversation, forced labor की जो आपने बात खत्म करी, किसी ने तो बहुत सही बोला. He's like, and I'll ask you the same question. Okay. And actually, it's a question for audience as well, जो सुन रही है. What does a slave want? I'd argue freedom. So let's say साहब, तो मैंने भी यही बोला था, तो किसी फिलोसोफर ने बोला था, और ये मुझे गेस्ट नहीं बताया पॉडकास्ट में किसी, कि एक फिलोसोफर बोलता है कि वर्ल्ड इज डिजाइंड बेस्ड ऑन स्लेव्स, क्योंकि फर्स्ट यही था कि मुझे मेरा काम नहीं करना, तो स्लेव को आप लेके आए, खरीदा, फोर्स किया, व्हाटएवर एक्स वाई ज़ेड थे. एंड व्हेन दे रियलाइज कि स्लेव की इच्छा क्या है, व्हाट डज अ स्लेव वांट, तो सबको लगता है फ्रीडम, बट रियलिटी स्लेव वांट्स अनदर स्लेव. एंड आई वाज लाइक, मीनिंग? इज लाइक, नो, उसे तो चाहिए कि तुमने जो उसको सुनाया वो दूसरे को सुना दे, बस फिर वो खुश है, क्योंकि वो तो आजाद हो जाएगा, तो उसे तो पता ही नहीं करना क्या है. He doesn't know or she doesn't know what to do. Right. They just want कि जो उस पे फ्रस्ट्रेशन है किसी और पे निकाल दे, ताकि so and I just kept thinking about it a lot, and then like किसी ने ये चीज समझी and इसको फिर वो बोल रहा था कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बना दे. जैसे I remember कि तुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, हो रहा है, ये लब तू मैनेजर, तेरी टीम तुम करो. तो अब मैनेजर खुश हो गया कि हाँ सही है, अब प्रेशर नहीं लगता, वो मोटिवेशन लगता है कि अब तो मुझ पे जिम्मेदारी भी आ गई है और मैं साबित भी कर सकता हूँ ये. It is fascinating how the human mind works when it comes to this. मुझे याद है मैंने अपना MBA इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से किया था, एंड वहाँ उन्होंने कुछ टाइम पे बोला था कि कुछ एलम्स जो होंगे वो ISB के बोर्ड पे रहेंगे 2 साल. तो आई रिमेंबर वन ऑफ दीज बोर्ड मीटिंग्स, मैं गया हुआ, आई वॉक इनटू अ रूम एंड ऑफ कोर्स आई वुडंट नेम नेम्स. तो फिर लंच की ब्रेक करी थी, एंड वन पर्सन वाज नरेटिंग द स्टोरी कि यार आजकल आप क्या करते हैं. मैं बोला मैं स्टार्टअप फाउंडर. अरे स्टार्टअप्स बड़े चल रहे हैं, बड़ा ही आजकल शान ये वगैरह है. ये कुछ 7-8 साल पुरानी बात है. तो मैं अभी ना एक स्टार्टअप फाउंडर से मिला था, बड़े अच्छे थे वो. उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आपकी सक्सेस का राज क्या है. एंड मेरी सक्सेस का सिर्फ एक ही राज है कि मेरी कंपनी में हर एक जॉब के लिए मेरा काम है ये इंश्योर करना कि कम से कम 2 लोग उस नौकरी को चाहते हैं, एंड दैट्स इट. एवरी रोल इन द कंपनी आई हैव टू इंश्योर 2 लोग किसी भी पॉइंट पे उस रोल को चाहते हैं, क्योंकि फिर वो दोनों आपस में भिड़ेंगे, वो जो भी करेंगे उनमें से एक जीतेगा और फिर से एक और आ जाएगा जो उस रोल को चाहेगा, वो भिड़ेंगे, एंड कंपनी ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है. तो लाइक मुझे ना काम नहीं करना है, मुझे सिर्फ इंश्योर करना है कि हर एक पॉइंट पे कम से कम 2 लोग हैं जो हर एक रोल है इस कंपनी में उसको चाहते हैं. एंड लाइक दैट इज ऑल्सो वे ऑफ लाइक दिस गाय हैज जस्ट अनलॉक्ड बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी कि जब तक एक गोल है तो नंबर 1 पॉडकास्ट इन द वर्ल्ड
बहुत लोग चाहते हैं। जब तक ये है तब तक द पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री विल कंटिन्यू ग्रोइंग। जिस दिन सिर्फ जो रोगन नंबर 1 बनना चाहता, कोई नहीं बनना चाहता, दिस इंडस्ट्री इज डेड। जिस दिन राज हमानी बन गया एंड कोई और नहीं बनना चाहता, दिस इंडस्ट्री इज डेड। लेकिन जब तक कम से कम 2 लोग हैं जो वहां पहुंचना चाहते हैं, ये इंडस्ट्री ग्रो करती रहेगी। इट्स क्वाइट फैसिनेटिंग टू थिंक अबाउट दिस। दैट इज सो ट्रू। It is. And such different ways of thinking about, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि leadership is all about just human psychology. In fact, मुझे ये लगता है कि पूरी जिंदगी ही is all about understanding humans. It's not about understanding machines. It is about understanding humans and our motivations, our inspirations. और सबसे मुश्किल चीज़ वही है यार, सबसे मुश्किल चीज़ वही है। तो हम यहाँ यूबीआई बात करते रहते हैं ना, बट अल्टीमेटली जिस इंसान को होगा, बहुत फैसिनेटिंग स्टडी थी ये, OpenAI ने ही कमीशन करवाई थी। दे गेव फैमिलीज, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ हाउ मेनी फैमिलीज, जिनकी एनुअल इनकम यूएस में करीब $40,000 थी। दे गेव देम एडिशनल $10,000 फॉर फ्री, जस्ट टू सी व्हाट हैपेंस। उनको उसके लिए कुछ काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सो काइंड ऑफ रेप्लिका फॉर यूबीआई या यूनिवर्सल बेसिक इनकम। एंड व्हाट दैट फाउंड वाज फैसिनेटिंग। नंबर 1, ना दिस इज नॉट नेसेसरली ट्रू फॉर एवरीवन, ये बहुत ही छोटा सा स्टडी था कि लोगों ने उस $10,000 से कम काम किया और अपना वक्त बचाया, विच इज ग्रेट, राइट। तो पीपल वर नॉट लाइक अरे 10,000 मिल गए, इसको 10 को शायद 20 भी कर सकते हैं और काम करते हैं। दे आर लाइक स्टेप बैक। नंबर 2, उस वक्त को उन्होंने स्किलिंग और लर्निंग के लिए यूज नहीं किया, वेलापंती के लिए यूज किया। सो दे consumed a lot more social media. They consumed a lot more numbing content or whatnot. They didn't devote it towards quote unquote productive work. And number 3, they did not report a elevated sense of better life. They're like हमारी जिंदगी सेम थी। उस स्टडी को आई डोंट थिंक फिर कंटिन्यू किया गया बिकॉज इट वाज नॉट गिविंग द काइंड ऑफ रिजल्ट्स दैट मे बी वर डिजायरेबल और वांटेड। कि लाइक यार शिट, ये तो यूबीआई अगर आ गया तो लोग बोलेंगे हम ज़्यादा दुखी हैं, हम फालतू की चीज़ें कर रहे हैं, हमारे पास टाइम तो आ गया है लेकिन हमें पता ही नहीं उस टाइम का यूज़ कैसे करना है। तो बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना यार कि दुनिया कैसे होगी, कैसे कहाँ जाएगी। बट ये तो है कि it is not going to be around. I really hope it's not about forced labor or any. Tell me one thing based on these things that you've said. आप इतनी सारी studies पढ़ते हो, research पढ़ते हो, okay, and books पढ़ते हो, and you have your own sense of understanding of the world. Of आप वो corporate hustle boy भी रह चुके हो, and then you've been this zen person. आपने बहुत appreciation देखा है, internet पे बहुत hate भी देखा है. You've seen a lot, right? So I think it's a good question to ask you because you deal with young people and you deal with like corporate leaders as well. लोग जैसे यू सेड कि ना जब तक कोई एक चीज चाहिए वो मिनिमम 2 लोगों को चाहिए तब तक लोग कुछ करते रहेंगे, राइट? व्हाई डू पीपल वांट व्हाट दे वांट? लाइक क्यों लोगों को एक लेट्स से यू सेड कि नंबर 1 बनना है या माइकल फेल्प्स उसको स्विमिंग में चैंपियन बनना है, या किसी को जैसे इंडिया में एक बहुत बड़ा ड्रीम है कि स्टार्टअप फाउंडर बनना है, मिलियनेयर बनना है, बिलियनेयर बनना है। नाउ मिलियनेयर नोबडी टॉक्स, आई डोंट नो व्हाई। बिलियन ही चाहिए, मतलब उससे कम तो बात ही नहीं करेंगे। हाँ, लाइक मिलियनेयर इज ऑलमोस्ट लुक लाइक नोबडी। आई वाज लाइक ब्रो, क्या ही होगा मिलियन से? सो क्यों लोगों को, व्हाई डू यू फील कि लोगों को चाहिए होता है? व्हाई इज देयर अ जॉब में भी किसी को एक पोजीशन चाहिए होती है? व्हाई डू वी एडमायर सर्टेन थिंग्स? यार इसके जितना मेरे को समझ में आया राज, इसके 3 कारण हैं। ये तीनों आइसोलेटेड कारण नहीं है, यूजुअली मिश्रण होता है। नंबर 1 कारण है, इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, टू बी सीन अ सर्टेन वे इन सोसाइटी। आप बहुत बहुत खूबसूरत कोट है एक, इट्स बाय फिलोसोफर नेम्ड कूली, उसका पहला नाम मुझे याद नहीं आ रहा। ही सेज दिस, इंग्लिश में बोलूंगा फिर हिंदी में दोहराऊंगा। I am not who I think I am. I am not who you think I am. I am what I think you think I am. Yeah. फिर से बताऊं, मैं वो नहीं हूं जो मुझे लगता है मैं हूं, मैं वो भी नहीं हूं जो तुम्हें लगता है मैं हूं, मैं वो हूं जो मुझे लगता है तुम्हें लगता है मैं हूं। तो मेरे दिमाग में जो मुझे लगता है राज मेरे बारे में सोचता है ना, वो मेरा वजूद है, वो मेरी आइडेंटिटी है, और मैं उस आइडेंटिटी को फुलफिल करने के लिए काम कर रहा हूं। तो मुझे क्या लगता है, मेरा मैनेजर मेरे बारे में क्या सोचता है, दैट ड्राइव्स मी।
मुझे क्या लगता है मेरे माँ बाप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, दैट ड्राइव्स मी। मुझे क्या लगता है मेरा पार्टनर, मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचते हैं, दैट ड्राइव्स मी। वो एक कल्पना है, शायद आपने कभी बात करी होगी, शायद नहीं। तो जैसे हमने कभी इस बारे में बात नहीं करी है, बट मेरे दिमाग में एक छवि है कि यार राज मेरे बारे में क्या सोचता होगा। एंड इफ आई केयर ट्रूली अबाउट राज एंड आई केयर अबाउट व्हाट ही थिंक्स ऑफ मी, देन आई विल सबकॉन्शियसली begin to do what I would like you to think about me. That is कारण number 1. कारण number 2 is humans inherently are designed to solve and to optimize. हमें एक गोल डिसाइड करके वहां पहुंचना अच्छा लगता है, क्योंकि हमें एक फीलिंग मिलती है ऑफ अचीवमेंट, एक फीलिंग मिलती है दैट वी आर पर्पसफुल, एक फीलिंग मिलती है दैट वी आर यूजफुल। एंड टाइम एंड अगेन द वर्ल्ड हैज शोन कि जब आप अपनी क्षमता से ज्यादा कुछ अचीव करते हो तो आपकी खुद की रिस्पेक्ट खुद के लिए बहुत बढ़ जाती है, which is a innate, in my opinion, desire of people that I wish I could respect myself a lot more than I do. Yeah. And then there's a third thing which somewhat goes back to जो हम बात कर रहे थे। एक इंसान का सबसे बड़ा रिग्रेट जिंदगी में होगा कि उसने जिंदगी में मेहनत करी लेकिन उस मेहनत का कोई परिणाम नहीं निकला। सबसे बड़ा रिग्रेट यही होगा, चाहे वो माँ बाप हो, बच्चा हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी। दे विल ऑलवेज फील कि यार ये मेहनत बर्बाद चली गई, मतलब कितना कुछ कर सकते थे लेकिन यहां इस पे इतना वक्त बिता दिया, कुछ नहीं निकला। तो एक थर्ड डिमेंशन ऑफ आवर ड्राइव इज सिंपली टू इंश्योर कि हमारी मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाएगी। दैट्स द रीजन वाई, लाइक इफ, एंड भगवान करे कभी ना हो, बट लेट्स से एट सम पॉइंट you just realize you can never be the world's number one podcaster, and nothing that you do and nothing that you've done will ever make you the number one podcaster for some weird reason। like कि कोई सरकार रूल निकाल लेती है कि नंबर वन पॉडकास्टर सिर्फ एक अमेरिकन होगा, like whatever bullshit, some कुछ बकवास, तो like नहीं हो सकता मैं। that will crush you more than anything else because you know कि तुमने मेहनत करी, you know पूरी शिद्दत के साथ करी। and I feel ये मैंने सबसे ज्यादा देखा है माँ बाप और बच्चों के रिश्ते में। You've also spoken about it, I remember beautifully in one of the stage interviews you did, कि जिस दिन माँ बाप को ये पता चल जाता है ना कि बच्चा पैरों पे खड़ा हो गया है, उनका काम खत्म, क्योंकि उन्हें उस पॉइंट पे पता चलता है कि उनकी मेहनत रंग ला गई। That's it, that's it. It is not about कि अरे भाई मतलब नंबर वन पॉडकास्टर बन गया, अरे ये हो गया ना। All they need to know कि जो भी हमने सैक्रिफाइस किया है, जितनी भी हमने मुश्किलें देखी है, उसका कुछ परिणाम निकला है। That's their drive, that's about। तभी वो माँ बाप पीछे लगते रहते हैं, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, पढ़ लो, उठ लो, खा लो, सो लो। Everything is a innate inner urge कि यार हमारी मेहनत फालतू नहीं जानी चाहिए। तो ये तीन कारण, and a mixture, of course, as I said, it's always a mix of these, but these three will always be the reason why we will continue striving for something higher and higher and higher. But I'll tell you what my biggest realization about life has been, which you will also realize when you become the world's number one podcaster. And that is, इंसान को उतनी खुशी एक मकाम पे पहुंच के नहीं होती है जितनी खुशी उस मकाम की तरफ काम करते हुए होती है। Agreed. And that's it. The day you become, and you will inevitably become the world's number one podcaster, I'm saying this today, predicting it, you already know it in your gut. It will be 24 hours, maximum 48 hours. If you stretch it a week, बलून वलून फोड़ोगे, तुम तालियां वालियां बजा लोगे, पार्टी कर लोगे, ऑफसाइड हो जाएगा वगैरह वगैरह, और अगले हफ्ते you'll be back 3 a week. In fact, उस समय पे 4 a week हो जाएगा, because now you suddenly have that to hold, that number to stay, that identity to in many ways protect. लेकिन ये जो जर्नी है ना, जहाँ तुम रोज वो देखते हो स्क्रीन, जहाँ तुम रोज अपने आप को मेजर करते हो, जहाँ तुम रोज लोगों को लाते हो, उनका एक्सपीरियंस सुपर नॉर्मल करने की कोशिश करते हो, अपना व्यूअर्स का लर्निंग सुपर नॉर्मल कर सकते हो, ये असली मजा है। एंड ये मजा बहुत लोग इसलिए नहीं एक्सपीरियंस कर पाते क्योंकि वो फिक्सेट कर देते हैं अपने आप को उस गोल पे, एंड वो गोल आता है, चला जाता है, एंड यू लाइक ये क्या हुआ यार, यही था बस, यही थी गाड़ी, यही था घर, यही बस यही था। एंड इसलिए जब लोग बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंसेस आर ग्रेटर देन थिंग्स,
व्हाट दे आर एसेंशियली सेइंग इज कि ऐसी चीज जो तुम्हारे याददाश्त में बस जाए ना, वो चीज हमेशा मोर वैल्यूबल रहेगी। चीजें तुम्हारी याददाश्त में नहीं बसती हैं। तुम्हारे सपने में कभी भी तुम्हारा फोन नहीं आएगा, तुम्हारे सपने में तुम्हारी कभी गाड़ी नहीं आएगी, पर तुम्हारे सपने में वो वेकेशन आएगा, तुम्हारे सपने में वो लोग आएंगे, तुम्हारे सपने में वो एग्जाम भी आएगा। एंड दैट इज वाई समहाउ मे बी इट इज समथिंग सबकॉन्शियस स्पिरिचुअल कि वी आर ड्रॉन मोर टुवर्ड्स एक्सपीरियंसेस, बट द वर्ल्ड कीप्स टेलिंग अस नहीं भाई, ये मग खरीद, ये माइक खरीद, ये चेयर खरीद, ये गाड़ी खरीद, उससे रुतबा बनेगा, उससे समाज तुझे इज्जत देगा। बट व्हाट वी ट्रूली वांट एंड अल्टीमेटली रिमेंबर इज जस्ट व्हाट वी एक्सपीरियंस। क्योंकि ये पूरी जनरेशन है which just believes in camera before the eyes, and that's criminal. Do you feel so? I disagree with this part. You don't think there's a generation that's clicking more than seeing? So I'll tell you what I believe in, okay? देखो, एक पार्ट है जनरेशन का, हम लोग की जनरेशन एंड द यंगर वंस, जो बहुत obsessed है स्टेटस से, और वो सिर्फ दिखना कूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन टू लिव, राइट? Here where I disagree. हमारी पूरी जनरेशन एंड मच यंगर पीपल देन मी, हुआ लाइक प्रॉब्ली 22, 21, सब का ना अगर 2 घंटे हैं तो उसमें से 20 मिनट उनको शो ऑफ करना है और वो उसको कैप्चर करना है प्रॉपरली, राइट? बट रेस्ट जो टाइम है ना उनका, वो एक्चुअली एंजॉय करना उनको नहीं फर्क पड़ता। इट्स एन एंड इकोनॉमी, इट्स नॉट ओनली इकोनॉमी। हम लोगों को सब लोग ट्रीट ऐसे करते हैं कि तुम्हें सिर्फ फोटो खींचने से मतलब है, वीडियो खींचने से मतलब है, तुम कॉन्सर्ट में जाके सिर्फ यही करते हो। ये यस, वो हमारा एक पार्ट है, बट शायद वो 2 घंटे कॉन्सर्ट में 20 मिनट हमारा पार्ट है। या कुछ लोग होंगे जिनका 2 घंटे का वो पार्ट है, बट मेजॉरिटी लोग दे एंजॉय। आई हैव सीन पीपल दैट वो अगर किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वो नई 5 चीजें ऑर्डर करते हैं जो उनको खानी है, टेस्ट करना है, उसके फोटो खींचेंगे, वो 5 मिनट लेट खाएंगे, बट वो 5 मिनट फोटो खींचने के बाद वो उनको याद रहेगा कोर मेमोरी की उनके फ्रेंड्स के साथ उन्होंने ये किया था। एंड एट दैट पॉइंट इट डजंट मैटर इफ द फोटो वाज परफेक्ट और नो, इट मैटर्स इज कि यार उस दिन इस दोस्त के साथ कितने मजे आए थे। Yeah, I think the point, so I agree with what you're saying कि the need to show or display is not as much जितना दुनिया बोलती है। Yes, it's a part of it. It's an essential part of it. It's not our whole personality. Absolutely. Where I have a different observation is अगर मैं किसी वेकेशन पे गया हूँ और मुझे फ्लाइट पे ये एहसास होता है कि मैं अपना घर पे फोन भूल गया, तो मेरी वेकेशन के एक्सपीरियंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस जनरेशन को पड़ेगा। हाँ। तो ये मेरे लिए द 0 और 1 है कि आर यू and maybe you describe it then the right way कि it's a and economy, not a only economy, certainly not a, it's not even all, it's and. हाँ, बिल्कुल। तो that explains this कि उनको ये चाहिए because they want to document, क्योंकि बहुत सारे I'm surprised of the fact कि जैसे मेरी टीम है, they're constantly clicking but they're not sharing। तो मैं लोग किसके लिए क्लिक कर रहे हो? मैं अपने लिए पढ़ा, फोन में पड़ा हुआ है कि कभी किसी पॉइंट पे हम लोग स्क्रॉल कर रहे होंगे तो टाइमलाइन देख लेंगे। तो it's the equivalent of what we used to have as photo albums। Yes। कि भाई हम एक फोटो खींचेंगे, डेवलप कराएंगे, फिर उसको एक फोटो एल्बम में डालेंगे, पूरे प्यार से रखेंगे, क्योंकि वो एक तरीका था हमारे पास एक टाइमलाइन बनाने का। अब एक थोड़ा कन्वीनियंट तरीका आ चुका है, एंड दैट परहैप्स एक्सप्लेन्स इट। यही है कि हमारे, क्योंकि एंड मे बी दैट्स द डिफरेंस कि आई डोंट नो इफ यू इवन नो ऑफ दिस, बट पुराने जमाने के जो कैमरास थे उनमें रील्स आती थी, और वो रील्स 24 या 36 फोटोज की होती थी। तो आपके पास वही है, 24 या 36 मौके हैं आपको कैप्चर करने के, तो आप क्लियरली वो खाने की फोटो खींचने में नहीं वेस्ट करोगे। क्योंकि आप ताजमहल के अगेंस्ट अपने आप को खींचोगे, आपको थाली की फोटो में कुछ नहीं मिलेगा। बट अगर इन्फिनिट है, एटलीस्ट फिगरेटिवली, कि आप एंडलेस रील्स की या फोटोज की रील ले सकते हो, देन शायद हम भी खाने की फोटो खींच लेते हैं। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। So